thermal properties of matter. ठीक है, right at the beginning of the class, 7:15 p.m. and we are starting off with the class. Right. इसीलिए बोल रहा था क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो दिख नहीं रहा है कितना टाइम हो रहा है अभी. So well, so the question is what is heat and what is temperature? Heat क्या है? Cause of the temperature. Heat is the cause and temperature is the effect. अगर उल्टा हो गया, temperature is the cause, heat is the effect, ऐसा नहीं हो सकता. So this is a very debatable question. कौन cause है और कौन effect है? हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं. We are not going into that debate. What we are going to understand is heat and temperature अलग-अलग से समझेंगे. What is heat? Heat क्या है? Is a form of energy. कहाँ रहता है वो? उधर आ गए. हीट कहाँ रहता है? हॉट बॉडी तो जी बॉडी गरम থাকে তার মধ্যে হিট থাকে. ঠান্ডা বডির মধ্যে কোনো হিট থাকে না. The main problem is heat cannot reside in a body. Heat is the term or a name given to energy in transit. Transit मतलब जब एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर होगा तभी वो हीट एनर्जी कहलाएगा. Otherwise it is not heat energy. Once it goes inside any body it becomes internal energy of the body. What is internal energy? You. उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से. इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशंस और द मॉलिक्यूलर मोशंस ऑफ द बॉडी. माने ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल सारा एनर्जी को मिला के टोटल जो एनर्जी होता है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी बोलते हैं. ठीक है, तो जब भी हीट एनर्जी एक बॉडी के अंदर फ्लो करके आ जाता है तो वो इंटरनल एनर्जी बन जाता है. ठीक है, अब एक हॉट बॉडी अगर लेंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और एक कोल्ड बॉडी का इंटरनल एनर्जी कम. जब हम लोग ऐसा दो बॉडी को कांटेक्ट में रखेंगे तब क्या होगा? हाँ, तब जब एनर्जी ट्रांसफर होके जाएगा उस ट्रांसफरिंग प्रोसेस के लिए, सिर्फ वो ट्रांसफरिंग प्रोसेस के लिए हम लोग वो एनर्जी को नेम देंगे हीट. राइट, जैसे एक बॉडी के अंदर आ जाएगा उसका नेम इंटरनल एनर्जी है, तब और हीट एनर्जी वो नहीं है. So write this down. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy in transit. Heat is a form of energy in transit. In transit. ठीक है? So सिर्फ ट्रांजिट के लिए हम लोग हीट बोलेंगे, उसके बाद हम लोग हीट नहीं बोलेंगे. When the heat energy gets inside a body, then the motion of particles within the body increases. Then the motion of particles inside the body increases and hence the energy is named as internal energy, and hence the energy is named as internal energy. ठीक है, so whenever we say it is a very hot body, it has got a huge amount of heat energy present inside it, the statement itself is wrong. Heat energy cannot reside inside a body. Inside the body वो internal energy है. जब वो कोई cold body उसके साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे तब heat energy flow करेगा. Then heat energy will start flowing. हो जाएगा सर? Is that clear? So what do we understand? Heat is a form of energy only in transit
the inflow of which will raise the temperature, the outflow of which will decrease the temperature. तो अभी सुन के लग रहा है कि heat is the effect and temperature is the heat is the reason cause और temperature is the effect. मेरा लास्ट वाला स्टेटमेंट सुन के ये लगा, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा अलग तरीके से देखें कि दो बॉडी के बीच में हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा तभी जब उसके टेम्परेचर डिफरेंस रहेंगे। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है और हम लोग दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तब उसके बीच में कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा, राइट। जब दो अलग अलग टेम्परेचर में बॉडी रहेगा, एक गर्म एक ठंडा, तभी हीट एनर्जी फ्लो करेगा। तो अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज द कॉज एंड हीट इज द इफेक्ट। तो इसीलिए वी डोंट गो फॉर दिस डिबेट, ये डिबेट के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। सो राइट दिस डाउन। हीट एनर्जी क्या है पता चल गया। अच्छा, हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज। Write this down. In CGS system, heat is measured. In CGS system, heat is measured. CGS system, heat is measured in calories. Heat is measured in calories. Okay? Yes or no? Yes. Heat is measured in calories. Now, what is calorie? 1 calorie कितना है? नहीं, वो होता क्या है? दूसरा हम लोग करते क्या है? पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, खाते हैं, हीट एनर्जी खाते हैं। आग लगाती है, वो पान वाला खा रहे हैं ना, हाँ राइट, पान वाला हीट है, दो वाले कांटेक्ट में। अच्छा, listen. One calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. To be more precise, from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. Okay, write this down. 1 calorie is the amount of heat energy. 1 calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. ये पार्टिकुलर टेम्परेचर है इसका। हाँ, इस मतलब डिफाइन करने के लिए एकदम एग्जैक्ट 1 कैलोरी होता है। बाकी सब में एप्रोक्स। हाँ, 1 कैलोरी से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ऐसे। ये वो स्पेसिफिक क्या कैसे? राइट, हम लोग आ रहे हैं उसी डिस्कशन में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग हीट एनर्जी का डिस्कशन कर लिए, अब थोड़ा टेम्परेचर क्या होता है सीख लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज टेम्परेचर? Whether which what? Temperature is whether which what? Measures. Temperature measures what? Temperature measures the thermal condition of the body, degree of hotness or coldness. So write this down. Temperature measures the thermal condition of the body. Temperature measures the thermal condition of the body. That is the degree of hotness or coldness. That is the degree of hotness or coldness. Degree of hotness or coldness. ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए बहुत सारा स्केल है, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। So you people know that better than me. I just give you a relation that connects all of them. See, for any thermometric device, কোনো thermometric device এর জন্য if you want to correlate, মানে একটা থার্মোমিটারের সঙ্গে অন্য থার্মোমিটারকে কোরিলেট করতে হবে,
So we take two very important points: the lower fixed point And the upper system. and the upper fixed point. Yeah, so Now what are these fixed points? The freezing point of pure water, and boiling point of pure water. Okay, we know for Celsius scale of temperature, this is 0 degree Celsius and upper 100 degree. and this is 100 degree. 100 degree Celsius, right? And for Fahrenheit scale, বলতে পারবে কেউ? 32 degree है আর এটা right 270 ना 212 ठीक है? And Kelvin में वो कितना होता है? 273 and ना Celsius और Kelvin है different stack, right? Different stack और Fahrenheit different stack, right? तो এখানে ডিফারেন্সটা কত 100, এখানে ডিফারেন্সটা কত আর এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে 100, ঠিক আছে? আরেকটা কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যদি আমাদের একটা আননোন জিনিস থাকে তাহলে আমরা সেটাতেও একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার রিচ করতে পারি। we can reach any particular temperature. Say this is any particular temperature, Celsius say it is C, Fahrenheit say it is F, Kelvin say it is K, ঠিক আছে? আর একটা আননোন স্কেল মানে the scale is not known to us, মানে say we have made a thermometer but उसका ग्रेजुएशन मार्क नहीं है, तुम लोगों को दिया गया है उसको और बोला गया है कि इसका ग्रेजुएशन मार्क करो, तुम लोग क्या करोगे? You first take it into freezing water, mark out the temperature, you take it into boiling water, mark out the temperature, lower fixed point upper fixed point mark हो गया। अब उसके अंदर you can put any number of division you feel like and it becomes a new thermometric scale और कुछ नहीं, समझ में आया ना? So अगर हम लोग के बीच में रिलेशन निकालना है, अगर हम लोग इसको x ले रहे हैं, मतलब वो अननोन टेम्परेचर को हम लोग x ले रहे हैं, तब ये वाला हो जाएगा लोअर फिक्स पॉइंट LFP और ये हो जाएगा अपर फिक्स पॉइंट UFP, राइट? तो सारा जो है वो प्रोपोर्शनेट होगा ना, all of them will be proportionate. So if I take this length माने upper fixed point to lower fixed point, so it is 100 minus 0 in Celsius scale or C minus 0 for this much length. So I can say C minus 0 by 100 minus 0 will be equal to F minus 32 by 212 minus 32 will be equal to K minus 273 by 373 minus 273, and for any unknown value it is X minus LFP by UFP minus LFP. Alright, তাহলে যে কোনো টেম্পারেচার স্কেলের সঙ্গে অন্য টেম্পারেচার স্কেলে যদি রিলেশন বার করতে হয় we can always write this, where we can correlate any temperature scales, যে কোনো টেম্পারেচার স্কেল আমরা correlate হ্যাঁ এটা ডাইরেক্টলি 100 C minus 0 by 100 সব ডিফারেন্স আছে বলো আমরা only difference X minus 30 अरे हाँ 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 फिर सिंपलीफाई करना है और स्टेप तो सिंपलीफाई करने के लिए तो है C by 100 is equal to F minus 32 by 180 is equal to K minus 273 by 100. এগুলো এদের মধ্যে রিলেশন, কিন্তু কোন একটা আননোন থার্মোমিটার দেওয়া থাকলে তখন কিন্তু আমাদের এই কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, ঠিক আছে? Is that clear? Yes or no? हाँ, अच्छा थर्मोमीटर बहुत सारा टाइप का होता है, ये बता देते हैं एक बार। Like the general thermometer, types of thermometer. जो जनरल हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं, that is
एक्सपैंडिंग लिक्विड थर्मोमीटर, एक्सपैंडिंग लिक्विड थर्मोमीटर। उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी डालो, लिक्विड एक्सपैंड करता है, लिक्विड का राइज हम लोग को दिख जाता है, हम लोग बोल देते हैं कितना टेम्परेचर है। जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसा और एक थर्मोमीटर होता है, अल्कोहल थर्मोमीटर होता है, वो हम लोग लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा कम है इसलिए, ठीक है। सो सेकंड टाइप इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। थर्ड टाइप इज कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। So first वाला एक्सपैंडिंग लिक्विड थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर, हाँ थर्मोकपल थर्मोमीटर, ঠিক আছে। So these are the main types, ঠিক আছে, these are the main types। এগুলো কি আমি বলে দিই, এগুলো আমরা জেনারেল এভরিডে লাইফে ইউজ করি না, we don't use them in everyday life, but what are them, एक छोटे করে বলে দিই। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, अगर हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो वो गैस का क्या इंक्रीज करेगा, गैस का पढ़ा है तुम लोगों ने, प्रेशर इंक्रीज करेगा, राइट। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करवाएंगे तो द प्रेशर ऑफ द गैस विल इंक्रीज। सो प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं गैस का मैनोमीटर से, तो वहां पर हम लोग देख लेंगे कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज करने से वो रीडिंग कितना चेंज हो रहा है। तो उसका अगर हम लोग एक कैलिब्रेशन कर लेते हैं, कैलिब्रेशन मतलब यही वाला चीज के यहां पर लोअर फिक्स पॉइंट में प्रेशर कितना है वो P1 है, हायर फिक्स पॉइंट में प्रेशर कितना है वो P2 है, और मान लो x जब है तब प्रेशर P है, तो उसका वैल्यू कितना है, तो यहां पर वैल्यूज डाल दो और x निकाल दो, बस सॉल्व कर दो, समझ रहा है। सो दैट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। व्हाट इज अ कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, प्रेशर कांस्टेंट, राइट, हीट एनर्जी देंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कितना वॉल्यूम कितना टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है वो कोरिलेट करेंगे, तो वो भी एक थर्मोमीटर जैसा बन जाएगा। कोई जगह में बहुत हाई टेम्परेचर होता है जहां पर ये लिक्विड गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, जैसे sun नहीं, सन में मेजर करके देखा क्या वो भी निकल जाएगा, ठीक है, सन नहीं। नॉर्मली द ब्लास्ट फर्नेस, हैव यू हर्ड अबाउट ब्लास्ट फर्नेस, कहीं सुना है, नहीं सुना है, तुम लोग मेटलर्जी पढ़ोगे तब सुनोगे। ये जो हम लोग आयरन बनाते हैं ना इन फैक्ट्रीज, आयरन मेकिंग फैक्ट्रीज, आयरन स्टील ये सब जो लोग बनाते हैं, आयरन का रॉड ये सब बनाते हैं, उन लोग आयरन कहां से बनाते हैं, ओर से, आयरन ओर से, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ये सब आयरन का ऑक्साइड्स है। तो उन लोग क्या करते हैं, कार्बन उसके साथ डाल के, मतलब कोल डाल के उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो कार्बन क्या करता है, उसका ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड से फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेटल फ्री स्टेट में आ जाता है। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये बहुत हाई टेम्परेचर में होता है, अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो उतना हाई टेम्परेचर में तो घर वाला थर्मोमीटर नहीं चलेगा ना, तो लगाएंगे तो पिघल के गैस हो जाएगा उतना टेम्परेचर, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मोकपल थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो थर्मोकपल थर्मोमीटर में क्या होता है, दो अलग अलग मेटल होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग मेटल, ऑब्वियसली टंगस्टन ले लेते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में मेल्ट टंगस्टन सबसे उसी का, हां टंगस्टन का सबसे ज्यादा, हां मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो टंगस्टन, वैनाडियम ये सब ले लेते हैं। वो अलग अलग दो मेटल को अगर एक पॉइंट में ज्वाइन करेंगे और उसी मेटल का दूसरा एंड दूसरा पॉइंट में ज्वाइन करेंगे, जो एक जॉइंट को अगर हम लोग वो मेटल फर्नेस के अंदर डाल देंगे और दूसरा जॉइंट को अगर बाहर रखेंगे ठंडा जगह में, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो का चेंज आएगा और इट विल जनरेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कॉल्ड थर्मोइलेक्ट्रिक करंट। इसे थर्मोइलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। वो करंट हम लोग मेजर कर लेते हैं और हम लोग को पता चल जाता है कि अंदर वाला टेम्परेचर कितना ज्यादा है या कितना कम है। दैट इज व्हाट वी कॉल अ थर्मोकपल thermometer. Is that clear? So these are the different types of thermometer. Actually, I should have done right at the beginning. तो ये हम वीडियो में beginning में जोड़ देंगे। ये बोलना नहीं था।